Hello everyone, this is Dr. Satinder Kaur, your botany faculty. So let's now discuss the botany part out here. आप लोगों ने zoology part कर ही लिया है. I am going to discuss what the botany portion for you. So let's start with this, okay? चलिए. The very first question out here is from genetics, which is there. Now look at this. You are supposed to find out the length of the DNA of your body. तो टू फाइंड द लेंथ ऑफ द DNA ऑफ योर बॉडी हमने क्या देखना है? हमने देखना है नंबर ऑफ बेस पेयर्स विच इज देयर इन अ डिप्लॉयड बॉडी. हाँ, हमारे डिप्लॉयड बॉडी में माने डिप्लॉयड सेल, सॉरी, दिस इज व्हाट 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स. एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स एन हैप्लॉयड. हमने क्लास में किया ही है. नंबर ऑफ बेस पेयर्स आउट हियर इन अ डिप्लॉयड सेल, व्हाट इज दिस? 6.6 इंटू 10⁹. साथ में हाउ डू यू फाइंड द लेंथ ऑफ द DNA आउट हियर? कैसे? दिस इंटू व्हाट? दिस इंटू द distance between two base pairs. That means the two nucleotides bolo, two base pairs bolo. What is that? The distance is what? 0.34 nanometer. If I go for this, converting this into meters, what is this? It is 10⁻⁹. इसको जाऊंगी, this and this is cut out here. Just multiply this with this. What do you get the answer as? The answer is 2.2 meters. ठीक है ना? This is conversion of this into meters. So that becomes what? 10⁻⁹ and the answer is what? 2.2 meters which is there. Fine. I hope it is clear to you. Nobody must have had any problem out here. ठीक है? Let's start with the next question which is there. Okay. Our next question out here. The next question from the botany portion. I have left the other questions out here. Now look at this. Glycoproteins and glycolipids. I hope you understand. In the eukaryotic cell, ये कहाँ पे बनता है? Glycoprotein, carbohydrate and protein, carbohydrate and lipids. Obviously, it's a function of what? The Golgi apparatus. I hope ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डाला था. Polysomes का in the paper which is there, our test papers which is there. What is polysomes? Number of ribosomes along with what? Messenger RNA. So obviously that cannot be the answer out here, है ना? Endoplasmic reticulum is not going to form this. The main answer for that, NCERT has that line. क्या है यहाँ पे? Glycoproteins, glycolipids कौन बनाता है? It is what? The Golgi या Golgi bodies which is there, है ना? Fine with this. I hope no problem with the question out here. Let's proceed with the next question. The next question out here is, again, the rest questions are from zoology which is there. I'm discussing the botany question again. Now look at this. थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको. अगर पूछा होता the chromosomal theory of inheritance was given by whom? किसने दिया था? It was been given by whom? Sutton and Boveri. They had given this chromosomal theory of inheritance. But experimental proof किसने दिया? Father of experimental genetics. कौन है वहाँ पर? द आंसर इज मॉर्गन. तो थोड़ा सा घुमाया, अगर किसी ने थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया वहाँ पर, बिकॉज जनरली क्या होता है कि हम सटन एंड बोवरी लिखते हैं, बट थोड़ा सा अगर दिमाग काम किया, सटन एंड बोवरी दोनों है ना, दोनों अलग अलग में लिखा है, सो दैट शुड नॉट बी द आंसर फॉर इट अगर कंफ्यूजन था. So answer is what? Morgan out here. Okay. Now we are having a next question for that. Let's talk about this. तो ये भी हमारा किससे आ गया? Genetics question out here. दो genetics question आ गया यहाँ से. This was from the cell. Now we are having what? Anatomical question. Let's see this anatomy वाला question out here. Now look at that. Anatomy. Now look at this question which is there. Okay, let me rub this. Now I hope you are aware that ये हमारे पास होता है wood. सबसे पहले wood मतलब क्या? Wood means what? Secondary xylem. And this is divided into two parts. एक central portion, एक peripheral portion. Central portion को क्या बोलते हैं? बीच वाला. It's known as heartwood. क्या है? Heartwood. ये क्या है? Sapwood, है ना? Sorry, wood. And wood is what? Wood is said to be secondary xylem. आप देखो यहाँ पे which is incorrect. आपका आंसर देखिए. Sapwood is the innermost secondary xylem. Secondary xylem wood is that innermost. नहीं, मैंने देखो क्या बनाया, heartwood center में, sapwood बाहर में, and it is lighter in color. Yes, heartwood is dark
दिस इज लाइट, हार्टवुड क्यों डार्क है? बिकॉज क्या करता है वो, हार्टवुड के पास में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपोजिशन है, वेयर एज सैपवुड अंडरगोज व्हाट, कंडक्शन, है ना। तो ये डार्क है, ये लाइट है, ये कंडक्शन करता है, ये नहीं करता है। तो व्हेन यू लुक एट दैट, योर ऑप्शन इज व्हाट, सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, ऑब्वियसली ठीक है। ड्यू टू डिपोजिशन resin, tannin, gums, everything, it is dark, which is very correct out here. प्रॉब्लम क्या आ गया, ये वाला पोर्शन, व्हाट इज दिस, इनरमोस्ट नहीं है, पेरिफेरल है। इनरमोस्ट क्या है, द हार्टवुड, है ना। तो हम फर्नीचर सब जिससे बनाते हैं, कमर्शियली इंपॉर्टेंट वुड क्या है, द हार्टवुड। सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन विच इज इनकरेक्ट कौन है, द सेकेंड पॉइंट विच इज देयर। फाइन विद दिस, चलो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट बॉटनी क्वेश्चन आउट हियर इज, लुक एट दिस, ये घुमा दिया एग्जामिनर ने आपको, बहुत स्टूडेंट्स ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। जैसे हम पढ़ते डीएनए हेलिक्स ओपनिंग, हेलिक्स है, ये हमारे पास हेलिक्स है, और हेलिक्स को खोलने वाला, दैट मीन्स ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कौन है, हेलिकेस। यहीं पे पढ़ के हम लोग कर देते गलती। बट हियर रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, आपको पूरा लाइन पढ़ना है। क्या पढ़ा आपने, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, फाइन। आगे क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन करने में आई होप आप सबको मालूम है, आरएनए पॉलीमरेज क्या बना है, 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, ठीक है ना, ठीक है, सिग्मा एंड ऑल, व्हाट इज दिस। तो हमारे पास कौन करता है, एक ही तो एंजाइम है यहाँ पर जो सब काम करता है, खोलता भी है एंड बनवाता भी है, पॉलीमराइजेशन करता भी है। तो व्हाट इज दिस, आरएनए पॉलीमरेज। इट्स नॉट हेलिकेज, इट इज इन केस ऑफ व्हाट, डीएनए रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। तो आरएनए में एक ही एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, विच इज हैविंग डिफरेंट एक्टिविटीज, एबिलिटीज, जबकि हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं डीएनए के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स आर देयर। तो एक ही सब काम कर जाता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो थोड़ा सा गड़बड़ हुई ना स्टूडेंट्स लोग से, बट नी नॉट वरी, बहुत आगे क्वेश्चंस आपको आते ही हैं, है ना। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद दिस। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आउट हियर इज व्हाट, ये सब हमारा जूलॉजी का पोर्शन आता है। लेट्स टॉक अबाउट द बॉटनी पोर्शन नाउ। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज, अच्छा देख लीजिए कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज, ये तो नंबर ही लिखा है डायरेक्टली आउट हियर। मेंडल हैड चोजन, मेंडल कौन है, फादर आउट हियर, ही हैड चोजन व्हाट, 14 हमारे पास, वहां पे एनसीईआरटी में हमारे पास क्या लिखा, 7 पेयर्स ऑफ इट, 7 पेयर्स ऑब्वियसली मीन्स व्हाट, 14 आउट हियर। तो 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज उसने चूज किया। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी से एक ही फीचर में एक दूसरे से डिफर करता है, एंड व्हाट इज द आंसर फॉर दैट, 14। देख लीजिए हम लोग टफ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, बट हमारे पास क्या क्वेश्चन आ गया, अ वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन आउट हियर, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल चूज, एंड द सिंपल आंसर फॉर दैट इज व्हाट, 14 आउट हियर, ठीक है ना। तो अगेन जेनेटिक्स का क्वेश्चन, सी टू दैट जेनेटिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, बट द बेस्ट पार्ट इज टफ क्वेश्चंस नहीं आया, सिंपल क्वेश्चंस which are there. Okay, let's proceed with the next question out here. Okay, the next question out here. The body of the ovule is fused within the funicle at, I hope you are aware, this is the ovule out here. ये हमारे पास embryo sac, ये nucellus, and ये हमारे पास integuments. ये है हमारे पास क्या, anatropous which is there. ये हमारे पास micropyle है, ये क्या है, funicle. The funicle which is there is in connection with this portion, and what is this portion known as, hilum. The body of the ovule is fused with the funicle at, ये funicle है, the stalk है, किसके साथ fused है, with this hilum out here. So hilum is the answer for that. What is this, hilum. Micropyle is this, देखो दूर है, चलाजा is this, दूर है, and this portion is nucellus. तो ऑटोमेटिकली ये nucellus वाले से फ्यूज नहीं हो सकता है ना, तो किससे, हाइलम। टेक्निकली क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल इज अ स्टॉक, एंड हाइलम इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द स्टॉक अराइजेस। जब वो सीड बन जाता है, आपने स्टॉक देखा होगा, स्टॉक कहाँ से अराइज करता है, उसको हाइलम बोलते हैं। सो दिस इज बॉडी। अब ये क्या है, मैं तो आपको सीड के बारे बोल दिया, ये किसके बारे बोल रहे, ओव्यूल। दैट मीन्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच इज देयर। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, है ना। चलो दैट इज वेरी फाइन। एंड ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद व्हाट, द रिप्रोडक्शन चैप्टर।
तो रिप्रोडक्शन से भी आया क्वेश्चन आउट हियर. लेट्स प्रोसीड. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर दैट लेट मी रब द डायग्राम फॉर यू. ओके, नाउ लुक एट दिस. अब हमने तो बोला था वायरस से क्वेश्चन तो आना ही है. हम सबको घुमा दिया है वायरस ने, पूरा कोविड-19 ने हमको घुमा दिया है. बट पूरा डायरेक्टली वायरस का वर्ड नहीं आया, तो वायरॉइड तो आ ही गया. तो उन्होंने क्या पूछा वायरॉइड से? लुक एट दिस, विच इज़ करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स. सबको मालूम है अ वायरस इज हैविंग टू पार्ट्स. वन इज द न्यूक्लिक एसिड, वन इज द कैप्सिड. ये हमारे पास क्या है? What is this? वायरस विच इज देयर. अब हमारे पास क्या है? वायरॉइड. वायरॉइड में क्या आया? एक पोर्शन है, एक पोर्शन नहीं है. Which portion is there? We are just having what? We are having this, the nucleic acid which is there. So what is this having out here? It's having, they have free DNA without the protein coat. ये नहीं है. अगर ये नहीं है, what is that known as viroid? But अगर देखो, they have RNA with the protein coat, तो ये तो फिर वायरस ही हो गया. They have DNA with the protein coat, ये भी वायरस हो गया. They have free DNA without the protein coat. No, that is not the answer. But अगर आपके पास में क्या होता, अगर आपके पास न्यूक्लिक एसिड होता और ये क्या, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ओनली द प्रोटीन कोड होता, तो प्रायोन. तो इसका उल्टा क्या होता है? प्रायोन. यू डोंट हैव दैट ऑप्शन आउट हियर. अब हमारे पास आंसर क्या हुआ? वायरॉइड. इट इज व्हाट? दिस आंसर आउट हियर. दे आर फ्री डीएनए विदाउट द प्रोटीन कोड. तो घुमा दिया थोड़ा सा, ऐसा नहीं घुमाना इन द सेंस कि वायरस के बारे में डायरेक्टली नहीं पूछा. आई एक्सपेक्टेड कि वायरस से आएंगे क्वेश्चंस, दे तो दिया, उतना नहीं. ठीक है ना? फाइन. लेट्स प्रोसीड फर्दर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आउट हियर इज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस आउट हियर. आपको अगर याद है, हमने क्लास में क्या किया था? स्पेशली ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको सिखाया था सबस्ट्रेट लेवल. व्हाट डज इट मीन सबस्ट्रेट लेवल? सबस्ट्रेट लेवल मीन्स डायरेक्टली विद द सबस्ट्रेट. अदरवाइज हमारे पास रेस्पिरेशन में क्या बनता है? वी आर हैविंग NAD कन्वर्टिंग इनटू NADH2, FAD कन्वर्टिंग इनटू FADH2. ये हमको क्या देता है? एनर्जी. What does this give you? One molecule of this gives you what? 3 ATP. One molecule of FADH2 gives you what? 2 ATP. But कब? जब ये रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, कहाँ ज़्यादा? ETS में, तब जाके आपको एनर्जी देता है ना? बट द पॉइंट इज, हमको पूछा सबस्ट्रेट लेवल. अगर आप ध्यान दो, इन केस ऑफ साइट्रिक एसिड, इट्स नोन एज साइट्रिक एसिड साइकिल. व्हाट इज दिस? साइट्रिक एसिड, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं इसको. साइट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज द सेम थिंग. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्या है? इसके अंदर एक ही जगह पे आपके पास में GTP और ATP बनता है डायरेक्टली विद द सबस्ट्रेट. इट रिएक्ट्स विद द सबस्ट्रेट एंड गिव्स यू GTP. सो दैट मीन्स क्या है हमारे पास? एक, हमने पढ़ा ना, एक साइकिल में एक GTP, तो 2 साइकिल में 2. तो एक, इट इज आस्क्ड इन व्हाट? 1 टर्न ऑफ इट. तो ऑटोमेटिकली व्हाट इज दिस? 1 आउट हियर. बाकी में क्या बनता है हमारे पास? 3 जगह पे हमारे पास बनता है NADH2, एक जगह पे हमारे पास बनता है FADH2. तो 3 जगह पे ये, तो 3 into 3 9, 1 into 2 2, this is what 9, this is what 2, and this is 1. 9, 10, 11, 12. The 12 ATP formation in one cycle. तो हम सबको मालूम है कितना बनता है? 24 आउट हियर, है ना? सो दिस इज इट. हमारे पास क्या हो गया? 1. तो जो रेस्ट 1 है, दैट इज डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. ये सब क्या है हमारे पास में? इनडायरेक्टली. कब देगा ATP? जब हम करेंगे क्या? ETS आउट हियर, है ना? क्लियर है? चले. द नेक्स्ट बॉटनी क्वेश्चन आउट हियर इज दिस. अच्छा देख लीजिए, वो क्वेश्चन हमारे पास में आया फिजियोलॉजी से. अगेन वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम फिजियोलॉजी विच इज देयर. नाउ व्हाट इज इट? अगर आपको याद है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम. व्हाट इज दिस? हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन आउट हियर. व्हाट इज दैट? हमने रिएक्शन पढ़ा है. नाइट्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 प्रोटॉन्स प्लस 16 ATP. ATP यूज होता है यहाँ पर. फॉर्म्स व्हाट? इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्लस हाइड्रोजन प्लस 16 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. उतना नहीं भी याद करने से चलता है. व्हाट इज इट? यहाँ तो क्वेश्चन आता कितना ATP लगा? 16.
यहाँ आता है हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, दिस इज व्हाट, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन, तो विच इज द आंसर आउट हियर, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। यहाँ क्वेश्चन आता है कितना एटीपी लगा, बता ही दिया मैंने कितना, 16 आउट हियर, फाइन विद दिस, तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया यहाँ पर। एंड कभी आता नाइट्रोजनेज एंजाइम, वो क्या है, एनारोबिक विच इज देयर, इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है तो हमारे पास काम नहीं करता है, तभी हमारे पास क्या है यहाँ पर, लेग हीमोग्लोबिन विच इज देयर, ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है ना। सो बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, इट इज व्हाट, अमोनिया एंड द हाइड्रोजन विच इज देयर, फाइन विद दिस। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट बॉटनी क्वेश्चन आउट हियर। द नेक्स्ट बॉटनी क्वेश्चन आउट हियर इज व्हाट, look at this question, the 24th, again from genetics, again आप ये बायोटेक्नोलॉजी में भी, जेनेटिक्स में सब में आता है, इवन बायोमोलिक्यूल्स में आता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, अ वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन। वहाँ पे क्या है, एडिनाइन हम सबको पता है, वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग प्यूरिन एंड पेरिमिडिन, प्यूरिन एंड पेरिमिडिन्स, एंड व्हाट आर दीज, द नाइट्रोजनस बेसिस, एंड अ प्यूरिन पेयर्स विद प्यूरिन ओनली, a purine से ही, sorry, a purine pairs with a pyrimidine and vice versa which is there. A जो है एक प्यूरिन है, किससे पेयर करता है, T से। G is a purine pairs with what, C out here। जब मैंने ये लिखा है बीच में, this two are what, the hydrogen bonds। A जब पेयर करता है T से, हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, G जब पेयर करता है C से, we are having 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। So let's have a look for it। Now, adenine pairs with thymine through 1 hydrogen bond, obviously wrong। हमने पूछा है correct out here, तो हमने देख लिया ये, देखो the answer is adenine pairs with thymine through what, 2 hydrogen bonds which is there। It does not pair with thymine, obviously wrong। This pairs with thymine with 3 hydrogen bonds which is wrong। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, which is a very simple basic question out here which gives you what, 2 hydrogen bonds out here। ठीक है ना, clear? Let's proceed with the next botany wala question out here। The next, coming next to the next botany question। Look at this question, जैसे words मिला आपको, different stages of cell division, और किस cell division का है, the meiosis which is there। जैसे ही आया तो cell, again cell से भी बहुत questions आया है। Let's talk about that। If you look at this, हमारे पास एक word है synapses। Synapses basically means what? Synapses means pairing, very close, coming close to each other। क्या बनाता है, bivalents out here। तो you are going to have the synapses which is there in the zygote stage। जब वो पास में आ गया, this is it, ये पास में आ गया, they are going to go for what, crossing over। but before crossing over वो tetrad stages बनाते हैं, टेट्राड स्टेजेस बनाते हैं। अब ये जब टेट्राड्स बन गया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हुआ, कौन लेकर आया उसके पास में, तो क्रॉसिंग ओवर, तो व्हाट इज दिस, पेकाइटिन गोज फॉर क्रॉसिंग ओवर विच इज देयर, ठीक है। एंड उसके पास में क्या बनता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस। कहाँ बना, इन केस ऑफ व्हाट, पेकाइटिन आउट हियर। बट लुक एट दिस, जब हमारे पास डिप्लोटिन हुआ तो वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हुआ, एंड अब क्या बन गया, chiasmata। व्हाट इज chiasmata, द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। दैट मीन्स दैट एक्स शेप स्ट्रक्चर जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं chiasmata। तो where you have this, you have this in case of what, डिप्लोटिन। तो 3 का किससे मैच करना है आपने, 2 से। एंड फाइनली व्हाट, डायकाइनेसिस, दैट मीन्स आपका क्रॉसिंग ओवर सब खत्म हो गया, ये सब कुछ इज डन, एंड दैट इज व्हाट, इट्स नोन एज सो। नाउ लुक एट द आंसर आउट हियर हैपेंस टू बी 1। लुक एट दिस, हमने देखा ये ए का 4 है, बी का हमारे पास 3 है, सी का हमारे पास 2 है, एंड 1 का हमारे पास, डी का हमारे पास 1 है। आई होप नो बडी इज हैविंग अ प्रॉब्लम। थोड़ा सा भी आइडिया हो तो यू कैन ईजिली गो फॉर दिस, कहीं पे प्रॉब्लम आता ही नहीं है। देख लीजिए, किसी को प्रॉब्लम होने से भी, पेकाइटिन शोज यू व्हाट, क्रॉसिंग ओवर। देखो एक क्रॉसिंग ओवर एक ही में है आपके पास में, अगर आपको और किसी कुछ आता भी नहीं है बाय चांस, तो क्रॉसिंग ओवर तो सबको ही मालूम है, व्हाट इज दिस, पेकाइटिन। तो आपने ये क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा, है ना। I hope I'm right out here. Kiana, thumbs up for that. Let's proceed further. Okay, our next botany question is certain questions from zoology portion. Next proceed with this next question from morphology. Wait कर रहे थे ना, morphology से नहीं आया. Let's go for it. The roots that originate from the base of the stem.
आपको पता है रूट्स नॉर्मली ओरिजिनेट किससे करते हैं? फ्रॉम द रेडिकल। अगर वो रेडिकल से करते हैं, व्हाट इज दैट? इट्स सेड टू बी द टैप रूट, ऑप्शन में नहीं है। बट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इट्स नोन एज व्हाट? इट्स नोन एज फाइब्रस रूट। एनसीईआरटी में बेसिकली एक लाइन में लिख दिया है, एन एग्जाम्पल क्या दे दिया इसका? वीट। Wheat happens with poaceae, the monocots which is there. The monocots are having what? The fibrous roots. ये हमारा प्राइमरी रूट है, लेटरल रूट्स है. दिस बेसिकली इज व्हाट? इट इज इन केस ऑफ टैप रूट. तो ये टैप रूट का पोर्शन हो गया. हमने बहुत एम्फेसिस देके लेटरल रूट्स के बारे में पढ़ते हैं. द लेटरल रूट्स अराइजेस फ्रॉम व्हाट? पेरिसाइकल. वो पूछा नहीं और सिंपल करके क्वेश्चन पूछ लिया है और इजी हो गया आपके लिए, है ना? तो दैट इज इट. प्रॉप रूट्स आर मॉडिफिकेशंस. कहाँ से अराइज करा है? फ्रॉम द ब्रांचेस. क्या बोलते हैं उसको? टार्जन रूट्स, है ना? चलो गुड, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन आउट हियर. तो मॉर्फोलॉजी से बहुत इजी आया. स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रॉब्लम होता है हमेशा, बोलते हैं कि मैडम वी कैन नॉट रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉर्फोलॉजी. तो आपके लिए बहुत इजी कर दिया, बहुत इजी वाला क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर मॉर्फोलॉजी में से. आई होप यू कुड डू दैट. वेरी फाइन, लेट्स प्रोसीड विद इट. So our next question out here from botany is question number 33. Now इसमें क्या है आपके पास में? They've asked from what? Ecology. हमेशा बोलते हैं ना इकोलॉजी पढ़ना है. This is the last chapter, environmental issues which is there. देख लीजिए क्या पूछा है वहाँ से. Antarctica regions, Antarctic regions out here, snow blindness. हम सबको पता है ओजोन लेयर इज देयर. अगर ओजोन लेयर नहीं होता है तो क्या आता है? हमारे पास यूवी रेडिएशंस. UV रेडिएशंस भी 3 में है, UVA, UVB, UVC विच इज़ देयर एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल आउट हियर. तो अब क्या होता है जब UV रेडिएशंस आता है? इट अफेक्ट्स आवर आईज विच इज़ देयर. तो कोरोना को अफेक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्नो ब्लाइंडनेस. इट ऑल्सो कॉजेस व्हाट? परमानेंट आई का प्रॉब्लम, कैटरैक्ट एंड ऑल विच इज़ देयर. तो आपके पास में आंसर्स में क्या आया? इट्स द आंसर आउट हियर इज व्हाट? इट इज़ गोइंग टू गो फॉर दिस. इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ UVB रेडिएशंस. और आपने नोटिस किया है कि नहीं? आगे में आएगा क्वेश्चन एक, सेम पैराग्राफ 2 क्वेश्चन, सेम पैराग्राफ में से 2 क्वेश्चंस. अगर आपने पढ़ा, आई गो बैक टू दैट. मॉन्ट्रियल में क्या है आपके पास में? क्या? ओजोन लेयर विच इज देयर. तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते कौन? ऑल दोज वर्ड, CFC एंड ऑल. वो सब आपके पास में क्वेश्चन आया एक पैराग्राफ में से. अगेन रिपीटिंग 1 पैराग्राफ 2 क्वेश्चंस आउट हियर. और एक क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ, देयर आर 2 वहाँ पर 2 क्वेश्चंस आउट हियर विच इज़ फ्रॉम द सेम पैराग्राफ. सो यहाँ पे 2 समवेयर एल्स मॉर्फोलॉजी से. तो 4 क्वेश्चंस आउट हियर 2 पैराग्राफ में से विच इज आस्क्ड. तो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद दिस. ओके, नेक्स्ट आउट हियर लेट्स टॉक अबाउट द 34th क्वेश्चन आउट हियर. लुक एट दिस. अब हमारे पास क्वेश्चंस है यहाँ पर फ्रॉम व्हाट? द फिजियोलॉजी पोर्शन, द मिनरल न्यूट्रिशन आउट हियर. तो देखिए यहाँ पर इट्स वेरी इजी आउट हियर. हमारे पास में आयरन, it is what? It is required for chlorophyll synthesis. ठीक है. Now look at that. Zinc हमने पढ़ा है the precursor for oxygen is what? Zinc. Zinc and tryptophan पढ़ते हैं. तो zinc is what? Obviously oxygen क्या है यहाँ पे? IAA, the natural oxygen out here. तो इसका precursor है ये. Next we are having what? Boron, germination of the pollen which is there, है ना? And comes the manganese, and manganese is photolyzer water. अगर आपको याद है, हमने हमेशा पढ़ा है, don't get confused. Photolyzer water which is a part of photosynthesis, उसमें manganese चाहिए, not magnesium. Normally photosynthesis में, respiration में, the element which is required is what? Magnesium. पर यहाँ पर Mn, Ca, Cl, photolyzer water और OEC. तो ऑटोमेटिकली आपके पास में आंसर ये आ गया. लुक एट दैट. व्हाट इज द आंसर फॉर इट? द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. आप इससे समझ सकते हैं. तो इन्होंने देखो, एक तो उस चैप्टर से ही आ गया, थोड़ा सा हमारे पास किससे आ गया? थोड़ा सा किससे हमारे पास आ गया? इट हैज़ कम फ्रॉम विच पोर्शन? थोड़ा सा हार्मोन से भी आ गया. तो कोरिलेशन वैसे बेसिकली फ्रॉम वेयर? फिजियोलॉजी विच इज देयर, है ना? तो देख लीजिए, फिजियोलॉजी हैपन्स टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉटनी विच इज देयर, है ना? लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट बॉटनी क्वेश्चन आउट हियर. The next is ray florets. You must have noticed out here. हम बहुत commonly पढ़ते हैं. Sunflower is an inflorescence, not a flower. बहुत बार पढ़ा. क्यों है inflorescence? Because having what? A number of ray and the disc florets. But look at this. This ray florets which are there are what? Having inferior ovary. The answer for that is the 4th option. Inferior ovary मतलब क्या? Epicynus. अगर आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था हमारे पास
एक पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन आया, एक तो बताया पॉल्यूशन वाला, एनवायरमेंटल इश्यूज, दूसरा क्वेश्चन इज दिस। इसके साथ कौन सा क्वेश्चन आया, आई जस्ट लेट यू नो आउट हियर। तो रे फ्लोरेट्स आर हैविंग व्हाट, सुपीरियर, और अच्छा सुपीरियर को ही हाइपोगाइनस बोलते हैं, ऑटोमेटिकली दैट कैन नॉट बी द आंसर। बचा हमारे पास ये 2 जिसको थोड़ा सा भी हिंट है, वी आर हैविंग व्हाट, द इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर, रोज, प्लम, पीच, एंड दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पैराग्राफ। हमने हमेशा पढ़ा था डायग्राम को भी ध्यान से देखना, एंड द बेस्ट पार्ट इज डायग्राम तो आया नहीं बट क्वेश्चन तो उसी से आया। फाइन विद दिस, तो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज दिस। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, वही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, क्या बोला, one paragraph of that chapter environmental issues is having 2 questions। आप चेक कर लेना, मैं झूठ नहीं बोल रही, just check that। Montreal is a place in what, Canada, very ठंडा place, तभी तो snow blindness हुआ ना। और दूसरा क्या, यही emission of ozone depleting substances, इसको कंट्रोल करने के लिए, so that it has been controlled, so that ozone layer deplete नहीं हो सकता है, so that UV radiations नीचे नहीं आए, हम लोग बच जाए, है ना। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट, इट इज द आंसर नंबर 1 विच इज द आंसर आउट हियर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ओके, चलिए द नेक्स्ट बॉटनी क्वेश्चन आउट हियर, ये भी थोड़ा सा घुमाया, दो वी हैव स्टडीड इन द क्लास प्रॉपर्ली, फिर भी देखिए इसको। ऑक्सीजनेशन ऑफ रुबिस्को, हमने क्या पढ़ा, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट सीखा था हमने, अंडरगोज कार्बोक्सिलेशन। दिस इज कितना कार्बन कंपाउंड सिखाया था ना आपको, 1,5, दैट मीन्स फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन पे क्या लगा है, फॉस्फेट आउट हियर। तो दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड, दिस इज 1 कार्बन कंपाउंड, दोनों मिलके इसका कार्बोक्सिलेशन होता है तो क्या बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट विच यू से, कितना कार्बन कंपाउंड, 2, तो कितना मॉलिक्यूल्स बनेगा, ऑब्वियसली 2, दिस इज गोइंग टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इट। बट ये क्या है, इट इज व्हाट, इन केस ऑफ कार्बोक्सिलेशन ऑफ इट। बट व्हाट डज द वर्ड फोटो रेस्पिरेशन मीन, ऑक्सीडेशन ऑफ इट। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करती हूं, दिस इज इट, ऑक्सीडेशन। Am I going to have one more carbon? Obviously no. तो क्या बनाएगा ये, it is going to form 1,3 carbon compound which is the same phosphoglycerate or glyceric acid। बचा क्या मेरे पास में, क्या, a 2 carbon compound, तो what is this, phosphoglycolate, phosphoglycolate, this has been formed, this is a 3 carbon, this is a 4 carbon। आप देखिए ऑप्शन में कितना घुमा दिया, 1 molecule of 4 carbon compound and 1 molecule of 2 carbon compound। तो मैं भी 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा खा गई, बट व्हाट इज इट, इट कैन नॉट बी अ 4 carbon compound and a 2 carbon compound, बिकॉज ये खुद ही कितना है, 5 carbon compound, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आया ही नहीं, तो इट्स गोइंग टू फॉर्म व्हाट, 1,3 carbon and 1 2 carbon, बट ऑप्शन में है ही नहीं वो, तो क्या बना, वी आर ईदर गोइंग टू हैव 1,3 carbon compound और हमारे पास 2 carbon कहीं लिखा ही नहीं है। द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ 1 molecule of 3 carbon compound। अगर मैं इसको राइट करती तो मुझे यहाँ पे 3 carbon और यहाँ पे 2 carbon लिखना चाहिए था। एंड हम सबको पता है फोटो रेस्पिरेशन, तभी तो वेस्टफुल प्रोसेस बोला हमारा, देखो ये बनने ही नहीं दिया, दैट इज वाई व्हाट इज इट, इट्स सेड टू बी अ वेस्टफुल प्रोसेस आउट हियर। समझ में आ रहा है ना, आई होप इट्स क्लियर टू यू। गलती तो नहीं कह रहा पेपर में, नहीं ना, गुड, वेरी गुड। ओके, द नेक्स्ट बॉटनी क्वेश्चन आउट हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज यूनिसेलुलर एल्गी। तो चलिए आ गया प्लांट किंगडम से भी क्वेश्चन आउट हियर, थोड़ा सा प्लांट किंगडम, थोड़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मिला के क्वेश्चन विच इज देयर, एल्गी इज देयर इन ब्लू ग्रीन पोर्शन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज वेल एज प्लांट किंगडम। तो देख लीजिए, आई होप यू आर अवेयर, these two are what, these two are red algae, and red algae are branched filamentous structures, and Abina is what, again a filamentous, Volvox is what, colonial, तो ये भी आंसर नहीं है। Chlorella spirulina हम सब ने पढ़ा इसको कहाँ पे, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन, तो ऑब्वियसली सिंगल सेल है, इट इज व्हाट, यूनिसेलुलर। इफ आई रिमेंबर, मैंने स्पाइरुलिना दिखाया भी आपको, ठीक है ना। सो व्हाट इज दिस, लेमिनेरिया सार्गासम आर ह्यूज members out here which belongs to what, Phaeophyceae। The answer out here happens to be what, the answer number 3 which is there। Fine, answer number 3 is the answer for the question, or the point number 3 is the answer for the question which is there। Fine, next
नाउ ये हमारे पास उससे आ गया. लेट्स टॉक अबाउट दिस पोर्शन अगेन फ्रॉम फिजियोलॉजी विच इज देयर. लाइट रिएक्शन, आई होप यू अंडरस्टैंड. लाइट रिएक्शन हमारे पास क्या है? वी आर हैविंग पिगमेंट सिस्टम 1, वी आर हैविंग पिगमेंट सिस्टम 2. अब हमारे पास पिगमेंट सिस्टम 2 से जब हमारे पास एलिमिनेशन हो, नॉट सॉरी, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम दिस, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग आउट, इट्स रिसीव्ड बाय व्हाट? Pheophytin. Received by whom? Pheophytin. What is pheophytin out here? Pheophytin is a chlorophyll without what? Magnesium. That means what? Colorless out here हो गया. Next, वहाँ से हमारे पास किसके पास जाता है? It goes to what? Plastoquinone. Plastoquinone से किसके पास जाता है? It goes to what? Cytochrome B6F. You can write directly. फिर जाता है नीचे और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? NADP converts it to NADPH2. यहाँ से now look at the question. In the light reaction, plastoquinone, PQ stand for plastoquinone, facilitates the transfer of electrons. The pigment system 2 से क्या निकला? Electrons. पहला compound to receive that obviously is pheophytin. From pheophytin किसने लिया? plastoquinone ने. From plastoquinone किसने लिया है? cytochrome, है ना? आपके ऑप्शन में देखो B6F, plastochrome B6, plastochrome F which is there. Sorry, cytochrome B6, cytochrome F which is there. And यहाँ से फिर जाता है, ultimately comes to pigment system 1. तो question out here, the light reaction plastoquinone facilitates the transfer of electron. कहाँ से? It facilitates what? It is from pigment system 2 to this. यहाँ पे जिसने pigment system 1 लिख दिया वो थोड़ा सा गड़बड़. This 2 to this portion which is there. Nothing to do with the 1. एक ही ऑप्शन दे दिया 2. तो जहाँ आपको थोड़ा सा आइडिया है उसको हमने इसमें पढ़ा, केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी में भी थोड़ा सा पढ़ा है ना. तो गो फॉर इट. आई होप फाइन गलती नहीं किया होगा. किसने गलती कर दे कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत क्वेश्चंस है विच यू मस्ट हैव डन इट करेक्ट. तो प्लीज बी मोटिवेटेड, कुछ नहीं, डोंट फील डिप्रेस्ड, कोई नहीं है, सीट्स इंक्रीज्ड है, जस्ट कीप दैट इन माइंड. ओके, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ. चलिए the next question out here, look at this question. Secondary metabolites, you must have seen. ये कहाँ से आया? Ecology, organisms and population. क्या आया? Predation. Predation में क्या है? अपने आप को बचाता है. कैसे बचाता है? कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, अल्कलॉइड सिक्रीट करता है. ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? अल्कलॉइड्स. निकोटिन, स्ट्रिचनाइन, कैफीन विच इज देयर, यहाँ पर ये अल्कलॉइड सिक्रीट करता है. तो जब कोई एनिमल ग्रेज करने जाता है, ब्राउज करने जाता है, जब खाता है, obviously it is not suitable for it. These are not suitable chemicals which is there. So that means what? उसको पता लगा इसका टेस्ट खराब है तो नेक्स्ट टाइम नहीं जाएगा ना उसको खाने के लिए. तो what is it? It is meant for what? A defensive action. So it protects itself from where? It protects itself from the other organisms. कौन organisms है? बता ही दिया आपको, है ना? Browsing वाला, grazing वाला, all those. ठीक है? तो कहाँ से आ गया? Ecology which is there. Fine. Organism and population. पूरा लाइन लिखा है NCERT में, word to word which is there. Okay, fine. Which is, let's proceed further then. Next question. The next question. Again, नहीं, sorry, this question. Look at this. Match the following. बहुत cleverly उन्होंने कर दिया आपके पास में. I hope you are clear with this. हमारे पास में ये सब autosomal diseases हैं and recessive diseases हैं. But कौन सा मैच किया? Autosomal recessive trait. It's only this. Phenylketonuria को dominant, which is not so. Thalassemia, what is this? Autosomal disease. तो ये भी wrong. Hemophilia, which is there. बहुत पढ़ लिया hemophilia, which is there. है ना? क्या पढ़ा? It's X-linked recessive disease. तो automatically एक ही correct है यहाँ पर. What is this? This happens to be so. यहाँ पे देख लीजिए, उसने सभी के सभी आपके पास में ये तो ऑटोजोमल दे दिया and this is the only which is what? Allosomal or sex linked out here. But वो सब क्या है? Recessive है. बट इसी को मैच करने में इसने बताया विच इज़ रिसेसिव. एंड अगेन व्हाट इज इट? दिस इज फ्रॉम जेनेटिक्स विच इज देयर. तो बहुत कुछ आया जेनेटिक्स में से, है ना? वैसे भी हमारा फेवरेट टॉपिक है जेनेटिक्स आउट हियर. फाइन, चलिए लुक एट दैट. अगेन कम्स फ्रॉम व्हाट? इकोलॉजी. पढ़ने को मन नहीं करता मैडम, इकोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है. नंबर जो लाके देता है ना उसको पढ़ना ही पड़ता है. लेट्स गो फॉर इट. Now, not an attribute of population. Obviously, birth एक species में है, natality rate population में है, mortality rate population में है, death individual का है, and sex ratio obviously male is to female which is there in the population. But हमारे पास क्या नहीं है?
पॉपुलेशन के अंदर. व्हाट इज इट? स्पीशीज इंट्रैक्शन. स्पीशीज इंट्रैक्शन कैसे होगा? पॉपुलेशन के अंदर में. इंडिविजुअल है ना, तो आंसर हैपन्स टू व्हाट, विच इज व्हाट, अ पार्ट ऑफ व्हाट, द population which is there. कहाँ से आया? Again, it is a part of what? Organisms and population. What is this? Ecology. Fine. चलिए आगे. The next question out here about inclusion bodies is incorrect. Directly cell chapter में आपके पास line to line लिख दिया है. These are what? Present in the cytoplasm. They are not having membrane out here. है ना, तो आपके पास पूरा लिख दिया है. This is free in the cytoplasm. Present क्या है? They represent what? Reserve material in the cytoplasm. They are not bound by the membrane. But यहाँ पे लिखा ingestion of food particles. Obviously, which is not correct out here, because it is what? Inclusion bodies is generally a feature of what? The feature of the plants which is there. Ingestion is a word related with what? Animals which is there. So what is the answer for the question? The answer which is not correct, the answer is point number 1 which is there. ये तीनों तो line to line, 3 ही line लिखा है NCERT में about this, and ये तीनों words हैं from the cell which is there, है ना. चलिए let's proceed further. The next part which is there, look at this, comes the anatomy portion out here. The transverse section of the plant shows the following anatomical features. देख लीजिए, the vascular bundles are scattered, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, अलग दूर दूर. Conspicuous parenchymatous ground tissue, ना आपके पास conspicuous parenchymatous ground tissue है यहाँ पर, तो आपके पास में I hope आपको पता है conspicuous means clear parenchymatous ground tissue. आपको मालूम है below the epidermis, from this hypodermis, hypodermis के नीचे से सारा का सारा क्या है? parenchymatous tissue. क्यों है यहाँ पर parenchymatous tissues? Because हमारे पास cortex, हमारे पास endodermis, pericycle, pith not differentiated. तो parenchymatous tissue पूरा ऊपर से नीचे तक जाता है. So what is this? ये clearly visible है. Vascular bundles are conjoined and closed. हम सबको पता है इसके अंदर xylem phloem, no cambium out here, तो closed. Next what? Phloem parenchyma is absent. हमेशा पढ़ा 2 चीज which is absent out here. कौन? Parenchyma, phloem parenchyma and collenchyma which is absent. तो ये obviously absent है. किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about what? Monocot stem. अगर हमारे पास roots होता तो हमारे पास तो radial vascular bundles है ना, तो that is why that is not the answer for the question. ठीक है, चलिए further. The next question out here again comes from what? From the ecology portion which is there. The gross primary productivity and the net primary productivity. I hope आप सबको मालूम है what is net primary productivity. This is primary productivity is related with what? It's related with किससे? The producers which is there. अब gross क्या है? Sorry, net क्या है? It is gross primary productivity minus the respiratory loss. And हमारे पास कितना respiratory loss होता है यहाँ पे? 20%. But अब क्वेश्चन सुनिए, देखिए, the gross primary productivity is always more than the net. Obviously ये ज़्यादा होगा तभी तो ये इसकी वैल्यू निकल रही minus this. So this is the right answer. Look at this. Gross primary productivity and this is are one and same. Obviously no. These are 2 different words. G is gross, N is net, which are not same out here. और बाकी तो आपको पता लग ही रहा है. That means there is no correlation. Obviously correlation तो है ही, है ना, नहीं बोल सकते कि correlation नहीं है, होना तो होगा ही, because ये तो correlation है यहाँ पर. Gross is always less than this. नहीं, अगर gross less होता तो इसमें से minus कैसे करते? तो answer is what? This portion, the option number 1 which is there. Fine. चलिए आगे. Look at this question. Up comes again from what? From the reproduction chapter. Very simple question out here. हमने हमेशा पढ़ा है water hyacinth, water lily क्या है? Aquatic plants है. जैसे हम aquatic plants बोलते हैं तो हम सोचते हैं water pollination. But क्या लिखा है NCERT में? These are above the water. You are going to have this flowers above the water. जब above the water है तो water pollinate नहीं करता है. ऊपर में क्या है? या तो air आती है या तो insects आते हैं. So pollinated by other agents. बहुत emphasis करके हमने पढ़ा था. What is it? This water hyacinth and water lily pollinated by what? Insects or the wind. Why? कहाँ पर क्यों है ऐसा? Because above the water which is there, है ना? वाटर के अंदर नहीं है, ऊपर वाले प्लांट्स विच इज देयर. ठीक है, चलो, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द NCERT which has been asked from this chapter.
The next question is again from physiology, which is there from the transport chapter out here. Look at this. जब मॉर्निंग में हमारे पास ड्यू दिखता है, जो हम गटेशन भी बोलते हैं, टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है, बट गटेशन भी बोलते हैं. व्हाट इज दिस? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं? गटेशन. ये कब होता है? ऑब्वियसली अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग्स. पर करता कौन है? इट इज व्हाट? रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. बट अगर ट्रांसपिरेशन होता तो ट्रांसपिरेशन तो पूरा दिन में करता है ना, रात को कहाँ करता है ट्रांसपिरेशन, या अर्ली मॉर्निंग कहाँ करता है? जब हमारे पास लाइट शुरू होता है, हीट डेवलप होता है, तब हमारे पास क्या आता है? ट्रांसपिरेशन आउट हियर. सो दैट इज व्हाई ट्रांसपिरेशन एंड द रूट प्रेशर आर व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये जब बढ़ता है ये कम होता है, ये बढ़ता है तो ये कम होता है. तो दैट इज व्हाई अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट कौन करता है? रूट प्रेशर. क्या करता है? गटेशन विच इज देयर. रेस्ट ऑफ द डे, रेस्ट पार्ट ऑफ द डे क्या होता है हमारे पास? ट्रांसपिरेशन विच इज देयर. फाइन है ना? करेक्ट. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन आउट हियर, which is asked from where? Again, which is asked from physiology, hormone chapter. Look at this. Which is not an inhibitory substance governing seed dormancy. That means जो सीड डॉर्मेंसी को प्रिवेंट करता है, उसको वो नहीं करता है. तो व्हाट इज दिस? ऑब्वियसली व्हाट इज दिस? इट इज सेड टू बी जिब्रेलिक एसिड, नॉट इनहिबिटरी सब्सटेंस. ओके, सो विच इज प्रमोटिंग दैट, एंड कौन है? जिब्रेलिक एसिड विच इज देयर. ओके, ये है इनहिबिटरी. जिब्रेलिक एसिड का इनहिबिटरी क्या है? एब्सिसिक एसिड. इनहिबिटरी उसका होता है, उसका एंटी जिब्रेलिन बोलते हैं हम लोग, है ना. चलो आगे देखिए. लुक एट दिस. ये तो मैंने आपको बताया था, तब आप लोगों ने बोला था मैडम डाटा कैसे याद करना है. हमने पढ़ा था क्या यहाँ पर? 1.5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ आर बीन डिस्कवर्ड. बट रॉबर्ट मेयर ने क्या बोला था? हमारे पास 7 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे. तो फिर मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों ने बोला था मैडम ये 7 मिलियन इसको कैसे मालूम पड़ा? हमने क्या आंसर बोला था? हमने बोला था बिकॉज अमेजन रेन फॉरेस्ट एंड हमारे पास ओशन में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं पूरा डिस्कवर नहीं हुआ, विच हैपन्स विद मेजर पार्ट ऑफ इट. ये जब डिस्कवर ही नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली द नंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी दिस. तो व्हाट इज दिस? अबाउट ग्लोबल डाइवर्सिटी इज अबाउट कितना? 7 मिलियन. वैसे कितना है? दैट मीन्स ओनली 22% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर बीन डिस्कवर्ड टिल येट. पढ़ा है ना ये सब? वेरी गुड. चलिए, इनफैक्ट जो हमारा उसमें था, हमने जो वहाँ पे लेक्चर दिया था on the TV, there also I mentioned this word for you. Fine. चलिए, the next question out here. Look at this 61. Look at this trophic levels which are correct with this. Look at that. Very simple. अगर आपको पूछा first trophic level कौन होगा? Has to be the grasses, the plants which is there. The second trophic level which is there is what? Rabbit, the herbivores. The third trophic level is what? Crow. And finally, the highest trophic level is what? The vulture. Eagle, vulture happens to what? The highest trophic level. So let's see to the answers. Options क्या हैं हमारे यहाँ पर? Yes, your options are point number 4. Look at that. The point number 4 gives you whatever I've just mentioned to you. Okay? Look at the next question. ये भी थोड़ा सा घुमा दिया. The last phase of translation, the first phase of translation, पूरा again it is asked from genetics question which is there. The first phase for that is what? It is said to be amino acylation of the transfer RNA. What is this? It's the activation of what? The amino acid. It is going to activate the charge that transfer RNA and that is said to be the first step for this. अगर आप उसको खोलो, molecular basis out here, the first part which is mentioned out here, translation में it's mentioned about this line. ठीक है ना? Next which is there. Let's talk about the strawberry or the cones. थोड़ा घुमाया, स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट आ गया बिकॉज NCERT में जहाँ पे ये लिखा है वहाँ पे और क्या क्वेश्चन लिखा है? वहाँ पे लिखा है along with the strawberry or the cone, heterospory लिखा है. हेट्रोस्पोरी और यहाँ पे कंफ्यूजन किया है बहुत लोगों ने. बट द आंसर आउट हियर फॉर दिस पोर्शन हैपन्स टू व्हाट? इक्विजिटम. इक्विजिटम के साथ में हमारे पास ऑप्शन और क्या है वहाँ पर? इक्विजिटम. अलॉन्ग विद इक्विजिटम वी आर हैविंग व्हाट? स्लेजिनेला. क्या है हमारे पास? स्लेजिनेला. बट बहुत लोगों ने सैल्विनिया लिख दिया, क्यों? द नेक्स्ट क्वेश्चन आउट हियर. Some dividing cells. I hope you are clear with this question. कहाँ सा है? सेल चैप्टर से. You are having this. ये हमारे पास सेल साइकिल है. You are having this portion which is known as what? G1 phase. And G1 phase is the dividing phase, active phase. And वहाँ पर जब हमारे पास G0 आता है,
So that means G naught कब आता है? It is either in the dividing phase, that means it is either in the G1 phase or at the end of that. तो आपका answer out here happens to what? The answer is G1 phase rather than the M phase which is there. तो क्या है यहाँ पर? Inactive stage होता है, G naught stage. What is that? The first option for that, it is the G1 which is in the middle of that or at the end of that. Okay, so this is known as the G naught phase which is there. Next comes थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा आपको यहाँ पर. This is from what? This is from the reproduction again. The plant parts which consist of two generations one within the other. मैंने आपको थोड़ा similar question पढ़ाया था. 3 generations interlocked in the seed of what? Of the gymnosperm. यहाँ पे भी almost similar है अगर meaning सीख लिया है. Look at the pollen grain is haploid, which is gametophytic. The anther is what? Diploid. The sporophytic. Germinating pollen grains, which is haploid. Male gametes are haploid. Seed in the fruit is diploid. The fruit is again diploid. Embryo sac is haploid. Ovule is diploid. अब हमको पूछा है 2 generations, haploid and diploid. Obviously pollen grain is haploid and anther is diploid. Embryo sac is haploid. Ovule is diploid. तो आपका आंसर क्या आ गया? The answer is this. दिमाग लगाया? Did you think about that? Hopefully yes. इतना तो मेरे बच्चे इंटेलिजेंट है ही. Fine with this. चलो next point. See to that again, quite similar to the same. Third question out here. फिर repeated from the same paragraph out here. Look at that. Synaptonymal complex occurs during dissolution. That means dissolve करता है. बनता कहाँ पे? Pectitin stage. Because इसने क्या करना है हमारे पास में? उसको पास में लेकर आना है. बट कहाँ पे डिजोल्व कर जाता? खत्म. तब हमारे पास क्या बनता है वहाँ पे? chiasmata. So this is it. It is what? The answer number 2. It dissolves where? It dissolves in the diplotin stage which is there. Fine. चले आगे next question. The next question out here. Look at that. इनका favorite लगता है मेरे को G1, G0. Very favorite question. Again देखिए इसको. So that means quite पास के questions डाले हैं. Look at this. Regards to the G1 phase which is there, हम सब ने पढ़ा है G1 phase क्या है? Active phase which is active out here, and S phase क्या है? DNA synthesis which is there, replication for that. तो देखो इसको, it is metabolically active, grows but does not replicate its DNA. Very correct. DNA कहाँ replicate करता है? In case of the S phase. Nuclear division takes place? Obviously नहीं. कहाँ पे? M phase में है. M phase means mitotic or meiotic. DNA replication takes place out here, happens to be the S phase. Reorganization of all cellular components takes place, obviously not in the G1 phase which is there. Fine. The answer is what? It is option number 2. Look at this. Look at this question out here. Name the plant growth regulator which upon spraying on the sugarcane crops. तो अगर आपको याद है यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया था? Sugarcane. हम खाते क्या है sugarcane का? हम शुगर लेते हैं उसमें से, बट किस पोर्शन से? इंटरनोड. द हार्मोन विच इलोंगेट्स द इंटरनोड, वो कौन है? इट इज जिब्रेन विच इज देयर. हमने और पढ़ा था ना, जिब्रेन क्या बनाता है? डिस्टिलरीज में अल्कोहल बनाने में. जब आपके पास मोलासिस, मोर द इंटरनोड, मोर द शुगर, मोर द वेस्टेज, मोलासिस आर लेफ्ट ओवर ऑफ दैट यूज्ड इन डिस्टिलरीज. ऐसे करके पढ़ाया था. कितना टन प्रोडक्शन इंक्रीज करता है वो भी हमने पढ़ा था. एंड व्हाट इज इट? तो ऑब्वियसली द आंसर इज व्हाट? जिब्रेन. द ऑप्शन नंबर 1 विच इज देयर. ठीक है ना. तो ये हमारे पास आ गया अगेन फ्रॉम वेयर? द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच इज देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस इज the 77th question which is from what? The genetics which is there. Let's talk about that now. हाँ जी, let's talk about the 77th question. Blood group बहुत commonly मैंने पढ़ा था. हमने पढ़ा था multiple alleles. When we have multiple alleles, तो multiple alleles means 2 से ज़्यादा alleles. 3 है, 4 है, 5 है. Blood group is by 3 only. But हमारे पास में वो 3 alleles कहाँ हैं? तो फिर हमने finally पढ़ा था It may be 10 alleles, it may be 20 alleles, but एक इंडिविजुअल के पास में सिर्फ 2 alleles ही होता है ना. तो look at this. Gene I has 3 alleles, which is correct. Small I does not produce any sugar, which is correct. Now, when this A and B are present together, they express the same type of sugar. Obviously, no. दोनों का अलग-अलग sugar है. This is wrong. A person will have only 2 of the 3 alleles, which is there. Yes. वही एक के पास में सिर्फ 2 alleles होगा. 77th question out here is having the answer as 2, which is wrong out here. Fine. Let's proceed further.
The next question comes from where? It comes from what? Plant kingdom which is there. Floridian starch, I hope you are aware that हमने बहुत पढ़ा है कौन सा किस में किस फॉर्म में फूड स्टोर करता है. We have studied that the Floridian starch is the reserve food material for what? The red algae which is there. And वो किसके similar है? Is this more similar to starch? Obviously no. It's similar to what? It is similar to amylopectin and glycogen. Glycogen is the reserve food material of fungi and animals too. And mannitol किसमें था? In case of what? Brown algae. Laminarian starch है, again brown algae which is there. Starch cellulose तो नहीं है reserve food material, but starch क्या है? Of what? Higher plants which is there. Okay, plants में. तो answer out here happens to be option number 1. तो हमारे पास kingdom से भी आया question out here. Let's proceed with the next question. The next question out here from botany which is there. Have a look for it. The process of growth is maximum during. अब तो बहुत आता है ये आपको, मैथ्स में भी है, फिजियोलॉजी में भी है, इकोलॉजी में भी है. व्हाट इज इट? ये हमारे पास है. This is the lag phase, this is the log phase, this is the stationary phase. So obviously the log phase which is there is going to have what? The log phase has the maximum growth. ठीक है ना? Now comes the next question out here. Next, which of the following regions of the globe exhibit highest range of species diversity? Answer is Amazon forest. सबसे ज़्यादा Amazon forest में lungs बोलते हैं of the planet which is there. किसी को थोड़ा confusion अगर है, मुझको लगा किसी ने confusion में लिखा है Western Ghats. अगर वो Western out India में होता, amphibians होता, तो answer could have been what? Western Ghats. But अभी answer हमारा क्या है? Amazon forest which is there. है ना? ठीक है? The next which is there. No. So we are finally done with the botany portion out here. I hope आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा. Fine. All the best. Waiting for a grand get together and a party. Okay. Thank you.